मामूली बात से शुरू होने वाली लड़ाई का भयानक अंजाम। मोहल्लेदारों ने ली अपने ही मोहल्लेदार की बेरहमी से जान। माँ के हाफिज़े कुरान फरमा बरदार बेटे को किया लहूलुहान। हमसायों ने अपने ही हमसाये को छुरियों के वार करके किया मुबैना तौर पर बेरहमी से कत्ल। बेटा था फरमा बरदार, जालिमों ने दिया बेरहमी से मार। मकतूल के लवाहिकीन और माँ के जवां साला बेटे के कत्ल के हवाले से होश रुबा इंकशाफात। अदम बर्दाश्त का भयानक अंजाम है जी। गली में मामूली सी बात होती है और उस पर इस हद तक चले गए वो लोग कि उन्होंने एक शख्स को नाहक कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल की वालदा और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहला माजी सामने बड़ा अफसोस है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा कितों शुरू होया सी? ये कौन लोग ने किन्हां ने छुरियां मार के तुहाडे बेटे नूं मारता? दो घर छड्ड के ते गए, चौथा घर है। अच्छा अच्छा। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਬੜੇ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਨੈਣ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ। एक गली च सारा झगड़ा होया कि घर आके उन्होंने मारियां? घर आन के छुरियां मारियां, झगड़ा गली च होया सी, उदों उन्होंने इट्टां ही मारियां सन कलियां। अच्छा, ते झगड़ा किस गल तो शुरू होया मां जी? कोई गल भी नहीं, ते उन्हें बच्चे ने इन्नी गल कहती भी ओहदा दोवें प्यो पुत्तर नंगे ते उन्हें कहा भी चाचा तेरा मुंडा मैनूं ना छेड़दा, मजाक करदा ते इहनूं हटा ला। ते आंदा मैं तेरे नाल निबड़ लैना वा, मेरे प्यो नूं क्यों लामा दित्ता? अच्छा, तुहाडे बेटे नूं उन्होंने कहा सी? हाँ जी। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਡਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ 3 ਸਾਲ 4 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ? ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਮੈਂ 3 ਮਾਹ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 4 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 1.5 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 2 ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਅਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਛੁਰੀਆਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਗਏ? ਛੁਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ FIR ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਫੜਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਉਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, IG ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। अल्लाह ताला ये दिन कभी किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। जो दर्द और कर्ब से ये वालदा और ये पूरा ख़ानदान गुजर रहा है वो यही महसूस कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इनको सब्र दे और हम यही उम्मीद करते हैं कि इनके बेटे के साथ जुल्म करने वालों को कानून के मुताबिक। बच्चे छोटे छोटे सन जो इन्हों का वालद फौत हो गया, फिर मेहनत मजदूरियां कर करके इन्होंने पढ़ाया लिखाया। कितने बच्चे ने माँ जी तुहाडे? 4 बेटियां ने, 4 बेटियां। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ? ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ? ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਉਧਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। बहरहाल जी, ये माँ जी की अपील है जी, और उन्होंने बता दी अपनी मजबूरी भी कि बहुत कम उम्री में
इनके खामन जो है वो इंतकाल कर गए और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पाला पोसा, उनका ख्याल रखा, उनको अच्छी तरबियत दी। लेकिन वे कहते हैं कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर जुल्म की इंतहा कर दी गई है और इस जुल्म का हिसाब ज़रूर होना चाहिए। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के बड़े भाई, और लड़ाई जो हुई थी इनके साथ हुई थी और वो बढ़ते बढ़ते मामला इस हद तक चले गए कि इनके छोटे भाई को छुरियाँ मार कर मुबैना तौर पर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बात करते हैं उनसे सारे मामले के हवाले से। अब बड़ा अफसोस है जी, ये बताएं झगड़ा शुरू किस बात पे हुआ था? ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। अच्छा ये दसो कि अपना लड़ाई किस वजह तो हुई सी? ਬਸ ਐਵੇਂ ਗਲੀ 'ਚ ਤਲਖਲਾਮੀ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਡਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ अच्छा ਤੇ ਉਸ ਤਲਖਲਾਮੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਗਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਮਾਰ ਛੁਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਦੋ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸੀ? ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। सोच के आए कि मारना ही मारना। मारने मार। इस वक्त ये टीम जुर्म में नकाब मौजूद है थाना सिटी फारूकाबाद, और हम बात करेंगे यहाँ के SHO वाजिद अब्बास से इस केस के हवाले से। जी वाजिद बताइएगा सारे केस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 2 मई को ये वाक़या हुआ, से चंद दिन पहले की बात है कि हमें इतला मिलती है कि एक गली में 2 हमसायों का आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, वहाँ गए तो दोनों घरों से कुछ ज़ख्मी थे। एक लड़का रिजवान नामी जो ज़्यादा ज़ख्मी था, हमने फौरी रेस्क्यू करके उसे हॉस्पिटलाइज़ किया, और दूसरे थे सारे जितने ज़ख्मी थे हमने सबको बारी बारी शिफ्ट किया वहाँ से। शिफ्ट करके तो उसके बाद वो रेफ़र हो गया, रिजवान काफ़ी ज़ख्मी था तो उनको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया, जो ज़रूरी उनके करने वाली थी कानूनी कार्रवाई हमने की। रिजवान उधर हॉस्पिटल यहाँ से लाहौर शिफ्ट कर दिया गया, तो जैसे ही वो लाहौर जाता है उसकी डेथ हो जाती है। उसे वो पता ये चला कि मामूली तलख कलामी की वजह से गली में इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, मोहल्लेदारों का आपस में। गली के हमसाए करीबी हमसाए हैं, 3-4 घरों का फ़र्क है आपस में। तो वजह मजदूर सिर्फ, लोग थी मामूली गली में तलख बैठने से वे एक बैठा हुआ था, उसने कोई आवाज़ कसी, उससे कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो लड़ाई झगड़ा इस तरह बढ़ गया कि दोनों ने आपस में निकाली चीज़ें, वो डंडे सोटे ले आए और इधर से छुरी के वार किए उसे रिजवान को, उसके वालिद 2-3 भाइयों ने। हमने फौरी इनकी रिजवान के भाई की मदय्यत में FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करके हमने मुलजमान पे रेड किया, जिसमें FIR में जो नामजद मुलजमान थे उन तीनों को अरेस्ट कर लिया हमने। हमें मुदई से बात हुई तो वो एक मुलजम, 3 का तो उन्होंने बताया, और बड़ा वो शुक्र पुलिस का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे कि मुलजमान को 3 मुलजमान को पकड़ लिया। एक मुलजम का वो जिक्र कर रहे थे, शायद अभी तक वो फरार है, शायद पकड़ा नहीं। हाँ जी, मुलजमान टोटल 6 हैं, जिनमें से 3 हमने अरेस्ट कर लिए हुए हैं। 3 में से एक जो जिसे मेन कह रहे हैं उसकी तलाश जारी है, रेड किए जा रहे हैं उस पर। तो इंशाल्लाह मेरिट पे हम इन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। जो उन्होंने नाहक कत्ल किया है मामूली लड़ाई झगड़े पे, ये नहीं था होना अब चाहिए। ये पता चला जो लड़ाई जो थी, ये मकतूल जो मरा है इसके बड़े भाई के साथ झगड़ा हुआ था, इसका तो कुछ झगड़ा था भी नहीं। इस हवाले से बताइएगा, मकतूल के हवाले से इलाके के लोगों का क्या कहना है? मकतूल नेक इंसान था, उसकी अच्छी वेल रेप्यूटेड था यहाँ का। उसका नमाज जनाजा भी बड़ा, तकरीबन 3-4 हज़ार लोग थे वहाँ नमाज जनाजा में, उसके बड़ा अच्छा नाम था। इनका भाई एक गुजरा था, और दूसरे मकतूल लीन जो मुलज़म पार्टी है। हाँ जी, मकतूल का भाई बैठा हुआ था, गली में बैठा हुआ था, और दूसरा गुजरा था जहाँ इनकी चपकलश हुई है आपस में। फिर वो दोनों भाइयों की वजह से फिर दोनों फैमिली इन्वॉल्व हो गई, और लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि एक शख्स की जान चलेगी। इस हद तक कि मर्द और ख़वातीन आपस में, हालांकि मुलजमान में ख़वातीन का भी नाम है। DP शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख साहब ने फौरी नोटिस लिया मुकदमे की संगीनी को देखते हुए। दोनों पार्टियाँ जो यहाँ की इतनी वेल नोन तो नहीं थी,
मगर फिर भी दोनों अच्छी फैमिली से थे, यानी कि शेख फैमिली थी, दूसरी मलिक फैमिली थी। डीपी साहब ने फ़ौरन टीमें तश्कील दी। हमने थाने में फिर CIA की भी मदद लेके तो हमने टीमें तश्कील दे के फ़ौरन 3 मुलजमान को हमने गिरफ़्तार किया 24 घंटों के अंदर अंदर। बाकी तीनों की तलाश जारी है। इंशाल्लाह जैसे वो गिरफ़्तार होंगे तो इस केस के हवाले से DPO साहब के क्या अहकामात हैं कि किस हद तक इस केस को जो है वो अपने DPO साहब के अहकामात बिल्कुल क्लियर हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने, और इंशाल्लाह मेरिट के मुताबिक ही हम इसे इन्वेस्टिगेशन को लेके चलेंगे और तमाम सबूतों के मुताबिक कोर्ट में ट्रायल करवाएंगे मुलजमान का, और जो मेन मुलज़म है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे।